Hey guys, so in this section we're going to be discussing the topic of oscillations. इसको usually simple harmonic motion से refer किया जाता है. This chapter is 17 according to the syllabus. So syllabus में दिखा देता हूँ. This is what we have to know for this topic. ठीक है. 17.1 we have to understand the terms displacement, amplitude, period, frequency, angular frequency and phase difference in the context of oscillations. So all these are going to be like discussed probably in the next video. इस video में मैं कुछ out of the syllabus चीज़ बताऊँगा, but that is necessary for the understanding of this chapter, right? And then we're going to be continuing the second line of this section in maybe third video. That is, we have to, this is basically the definition of simple harmonic motion. So this thing, that acceleration is proportional to displacement and in the opposite direction इसकी पूरी equation की derivation होगी. That is written right here. So probably the second and the third part of 17.1 is going to be discussed in the third video probably. Sorry for that. Then we have to derive the equations for velocity and then examples discuss करनी है, ठीक है. Energy की बात करनी है, damped oscillations, resonance, and this is it for this chapter. थोड़ा सा मुश्किल chapter है but doable है, इतना मुश्किल नहीं है. Questions are not that frequent as compared to gravitation and electrostatics. Right, so let's begin. So this is going to be like an extension, this video, क्योंकि इसमें मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि इस सिलेबस में लिखी भी नहीं है यहाँ पे, but that is necessary for the understanding. Right, so sorry for this, like I have a flu, so yeah, bear with me. Okay, so first, before actually beginning with simple harmonic motion, I need to discuss some things. The first thing is that we should be able to understand the difference between a periodic motion and an oscillation. Okay, so let's discuss that. Starting with periodic motion. Periodic motion. Now, what is periodic motion? Periodic motion, as the name suggests, is a type of motion जो कि periodic है technically. एक time period के बाद वो motion repeat होता है, ठीक है. So we can call it a repetitive motion, ठीक है. It is a repetitive motion, ठीक है. Repeat होता है. After a fixed interval of time, ठीक है. और इस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम को हमने AS में सीखा था वेव्स के चैप्टर में. इसको हम लिखते हैं कैपिटल T से, विच इज़ टाइम पीरियड. ठीक है. सो पीरियोडिक मोशन शुड हैव दीज टू थिंग्स. रेपिटेटिव होना चाहिए और एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए, ठीक है. नाउ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने पहला चैप्टर A2 फिज़िक्स में पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें चीज़ देखते थे. फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इट इज़ मूविंग लाइक इन अ यूनिफॉर्म सर्कल, सॉरी अ सर्कल, बट एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते थे. So try and make a good circle. It's like a potato. Let me try again. Okay, fair enough. So इसमें हम देखते थे कि एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इसकी मेन पोजीशन जहाँ पे ये बना हुआ है वही मेन पोजीशन है इसकी. इट स्टार्ट्स मूविंग फॉर एग्जांपल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये मूव करते 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 जब इस पॉइंट पे वापस आता है जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, ये जो टाइम लगता है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और फिर ये अपनी मोशन को दोबारा स्टार्ट करेगा, ठीक है. तो ये एक पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल हो गई, ठीक है. अनदर एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन कुड बी, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ चाइल्ड, एक आदमी है, एक बॉय है मे बी, ठीक है. वो फॉर एग्जांपल अपनी इनिशियल पोजीशन से ऐसे सपोज करते हैं कि ये एक स्टेयरकेस है काइंड ऑफ. बेटर फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक स्टेयरकेस बना रहा हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है. ही देन स्टेप्स अप और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है. फिर ये वापस नीचे आता है, फिर ये वापस ऊपर जाता है,
और जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना टाइम नीचे आने में लग रहा है, तो ये भी काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन हो गया, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में एक और चीज़ हम देखते हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग, जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमारे जो फुट की मूवमेंट होती है दैट इज़ पीरियोडिक, राइट। एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं हम, राइट फुट देन लेफ्ट फुट देन अगेन राइट फुट। तो राइट फुट जब आगे रखते हैं वहाँ से टाइम स्टार्ट करें और दोबारा जब हम राइट फुट आगे लाते हैं उसमें एक टाइम लगता है ना, एंड दैट टाइम मीन्स कॉन्स्टेंट इफ यू वॉकिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड और मे बी रनिंग, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन हो गया। So any kind of motion that repeats after a fixed interval of time is a periodic motion, ठीक है। Then what is oscillation? Oscillation जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, oscillations are vibratory motions, ठीक है। मैं समझाता हूँ vibratory का मतलब, so let me write it first. Oscillation, all oscillations are vibratory motions. या जैसे हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशंस। तो दे आर ऑसिलेशंस आर टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसिलेशंस आर अ सबसेट कह लो, एक टाइप कह लो पीरियोडिक मोशन की। सो वी कैन से कि ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक मोशंस, बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेशंस। क्यों? अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की थी सर्कुलर मोशन की, वो पीरियोडिक तो है, ऑसिलेशन नहीं है, वाइब्रेटरी नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन होने के लिए जो चीज़ नेसेसरी है दैट इज़ एक ऑब्जेक्ट अपने मेन पॉइंट पर हो, ठीक है, और वो डिस्प्लेस्ड हो अगर एक डायरेक्शन में, तो इट शुड रिटर्न बैक टू दैट सेम प्लेस, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आए, देन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे एंड देन कम्स बैक अगेन टू द मेन पोजीशन एंड दिस मोशन कंटिन्यूज। इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। दीज आर ऑसिलेशंस, राइट। सो एग्जाम्पल अगर देखें फॉर एग्जाम्पल, और ये हमें आगे डिस्कस करनी भी है एग्जाम्पल बहुत डिटेल में। अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक काइंड ऑफ अ टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकल लाइन बनाई है दिस इज़ अ फिक्स्ड एंड, ठीक है। नाउ इस फिक्स्ड एंड से मैंने एक स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है, ठीक है, और वो जो स्प्रिंग है वो एक ऑब्जेक्ट से अटैच हुई हुई है जो कि इस सरफेस पर रखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है। और अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सरफेस है दैट इज़ अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। नाउ मैं इसकी मेन पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ, दिस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। मेन पॉइंट को रिप्रेजेंट हम आगे भी सीखेंगे करना, बट अभी बता देता हूँ कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ एस इक्वल्स टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट कह देते हैं इसे। व्हाट आई एम डूइंग इज़ के फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल एक फोर्स लगाकर राइट की तरफ लाता हूँ, तो हम देख सकते हैं ना कि ये जो यहाँ पे स्प्रिंग है जो कि ओरिजिनली अपनी ओरिजिनल लेंथ पे थी, ये एक्सटेंड होगी। जब ये एक्सटेंड होगी तो इसके अंदर एक टेंशन जनरेट होगी। लेट मी कॉपी दिस डायग्राम, नीचे मैं दिखाता हूँ बनाकर, राइट, ओके। सो फॉर एग्जांपल मेन पॉइंट को मैं वहीं बने रहने देता हूँ, इस एस इक्वल्स टू ज़ीरो को मिटा देता हूँ एंड ऊपर से इसको कनेक्ट कर देता हूँ लाइक, ठीक है। सो मैंने इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द राइट पुल किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, इस केबल को थोड़ा लंबा कर देते हैं, राइट, ये थोड़ा सा राइट पे आया। नाउ एज अ कॉन्सिक्वेंस ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन होगी, तो ये काइंड ऑफ लाइक एक्सटेंड हो गया, ठीक है। क्योंकि ये एक्सटेंड हुआ है तो हमें पता है हुक्स लॉ से एएस पे पढ़ा था हमने कि जब भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन होती है देयर इज़ टेंशन इन द स्प्रिंग, राइट, और वो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है, अवे फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड, ये कहना ज़्यादा बेहतर है, टुवर्ड्स अ फिक्स्ड एंड, जहाँ से ये फिक्स हुआ होता है उस तरफ टेंशन होती है। सो इन दिस सिनेरियो टेंशन इज़ गोना बी लाइक दिस, राइट। अच्छा, मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुल किया और यहाँ पर होल्ड कर लिया। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करूँगा क्या हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लेफ़्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा और क्या वापस अपने मेन पॉइंट पे आके रुक जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, इनर्शिया की वजह से, अपनी वेलोसिटी की वजह से ये इस मेन पॉइंट से लेफ़्ट पे चला जाएगा, ठीक है। जब ये मेन पॉइंट से लेफ़्ट पे जाएगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये अपने मेन पॉइंट से लेफ़्ट पर आएगा, एक सेकेंड,
ओके, सो फॉर एग्जांपल ये अपने मीन पॉइंट से मीन पॉइंट वही बना हुआ है, ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, मीन पॉइंट से लेफ्ट पर आ गया। तो हम क्या, तो लाइक स्प्रिंग में कंप्रेशन होगी ना, हम देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग इज़ गोना बिकम कंप्रेस्ड लाइक दिस। अब कंप्रेशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग जो है वो फोर्स अब टुवर्ड्स राइट लगाएगा, राइट। पहले क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया था तो फोर्स लेफ़्ट पे लग रही थी, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंप्रेस करूँगा तो स्प्रिंग चाहेगा ना कि वो ऑब्जेक्ट को बाहर पुश करे, तो पुश करने के लिए एक फोर्स चाहिए होगी ना, तो हम टेक्निकली कह सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर टेंशन अब इस डायरेक्शन में होगी, तभी तो ये ऑब्जेक्ट राइट पर जाएगा दोबारा, तभी तो ऑसिलेशन कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो काइंड ऑफ हम देख सकते हैं ना कि अपने मीन पॉइंट पे था, देन मीन पॉइंट से राइट पर आया यहाँ पर। सो ऐसे बना देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल इसका मीन पॉइंट था, जो नीचे सेकंड वाली डायग्राम बनी हुई है उसमें ये अपने मीन पॉइंट से थोड़ा सा राइट पर आ गया, ठीक है। जो थर्ड डायग्राम है उस पर ये अपने मीन पॉइंट पर आया और फिर उससे लेफ़्ट पे चला गया, ठीक है। तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग टू मोशंस, बैक टू द मीन पॉइंट एंड देन टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द मीन पॉइंट, ठीक है। एंड देन द मोशन इज़ गोना कंटिन्यू, लेफ़्ट पर है, कंप्रेशन हुई है, फिर ये राइट पर आएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, फिर लेफ़्ट पर जाएगा, फिर राइट पर जाएगा, तो एक टू एंड फ्रो मोशन हो गया। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। सो इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है, हर पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, बट इट इज़ एन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन को ऑसिलेशन क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वाइब्रेटरी नहीं है, एक ही फिक्स डायरेक्शन में मूव करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पीरियोडिक मोशन एंड एन ऑसिलेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। सिलेबस में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ इसका डिफरेंस, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। Right, so in the next video we're going to be like officially starting with the like statements written in the syllabus. So displacement, amplitude, period वगैरह ये सब next video में discuss करेंगे.